السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عربی گرامر کورس مدینہ بکس کا دوسرا لیسن ہے، اور آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسم الاشارہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا دو اہم چیزیں پڑھی تھیں۔ ایک یہ کہ اسم جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم نکرہ کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور اسم معرفہ کے شروع میں الف لام لگتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانا ہو، مثال کے طور پہ جیسے کتابن ہے، کتابن اس کے آخر پہ تنوین آیا ہے تو یہ نکرہ اسم ہے۔ اگر ہمیں اسے معرفہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے اور آخر سے تنوین کو ختم کر کے ایک حرکت وہاں اس پہ رہ جائے گی، تو یہ بنے گا الکتاب، یہ معرفہ بن جائے گا۔ لیکن اس میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی خاص شخص کا نام آ جائے، ایک عام نام تھا، ایک عام اسم تھا، مثال کے طور پہ جمیل، جمیل اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ یہ ایک عام نام ہے، یہ ایک نکرہ نام ہے، لیکن جب یہ نام ہم کسی ایک بندے کا رکھ دیتے ہیں، کسی ایک شخصیت کا نام رکھ دیتے ہیں، تو اب یہ نام اس پہ تنوین ہونے کے باوجود یہ نام معرفہ بن گیا ہے، کیونکہ یہ اسم علم ہے، کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے، یہ کسی خاص بندے کا نام ہو گیا۔ اسی طرح محمد بھی معرفہ ہے، اگرچہ اس کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے، اس تنوین آنے سے اس کے معرفہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری جو اہم چیز ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ اسم ہم اپنی حالتیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اسم کبھی اس کے آخر پہ پیش آتا ہے، کبھی اس کے آخر پہ زبر آتا ہے، کبھی اس کے آخر پہ زیر آتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جملے میں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جملے میں اس کی حالت کیا ہے، جملے میں اس کی حالت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے خلق اللہ الانسان، خلق اللہ الانسان، اس میں اللہ کے اوپر پیش ہے اللہ، تو یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ جس اسم کے آخر پہ پیش ہو اسے مرفوع کہا جاتا ہے، چاہے ایک پیش ہو چاہے دو ہوں، اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ اور جس اسم کے آخر پہ زبر ہو اسے منصوب کہا جاتا ہے، اور جس اسم کے آخر پہ زیر ہو اسے مجرور کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے خلق اللہ الانسان، اس میں اللہ جو ہے یہ مرفوع ہے، اور انسانہ یہ منصوب ہے۔ انسانہ اس کے آخر پہ زبر ہے تو یہ منصوب ہوگا۔ اس کا مطلب بنتا ہے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ لیکن اگر ہم ایک معمولی سی تبدیلی کر دیں اس جملے میں، ہم اللہ کے اوپر پیش کے بجائے زبر لگا دیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو مرفوع کے بجائے منصوب کر دیں، اور انسانہ کو منصوب کے بجائے مرفوع کر دیں، یعنی اس کے اوپر پیش لگا دیں، تو یہ جملہ بن جائے گا خلق اللہ الانسان۔ تو یہ ایک اتنی معمولی سی تبدیلی کی وجہ سے، جسے ہم قرآن پڑھتے ہوئے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل ہم زیر زبر پیش کا فرق نہیں کرتے، کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو اسے کوئی غلطی ہی نہیں سمجھتے۔ اتنی معمولی سی تبدیلی کی وجہ سے اس جملے کا مطلب بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس جملے کا مطلب بن جاتا ہے انسان نے اللہ کو تخلیق کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ اہمیت ہے مرفوع، منصوب اور مجرور کو سمجھنے کی۔ پچھلے لیسن میں تو میں نے صرف آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ جو اسم جس کے آخر میں پیش آتی ہے نا، اس کا نام ہوتا ہے مرفوع، اور جس کے آخر پہ زبر ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے منصوب، اور جس کے آخر پہ زیر ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے مجرور۔ لیکن آج آپ کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف۔
देखते हैं कि आज के लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस्मुल इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये एक घर है, अगर हमें इसकी तरफ इशारा करना है तो हम उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में हम बोलते हैं ये, या इंग्लिश में दिस। इशारा करने के लिए यही लफ्ज़ बोला जाता है। अरबी में क्या बोलेंगे? अरबी में क्या कहेंगे? अरबी में हम कहेंगे हाजा, हाजा ये। और अगर ये कहना हो कि ये घर है तो हम कैसे कहेंगे? हाजा बैतुन। हाजा बैतुन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हाजा बैतुन, ये घर है, दिस इज अ हाउस। ठीक है। अब देखें ये जो हाजा बैतुन है, ये एक मुकम्मल जुमला है। आज दूसरी क्लास है और हम वर्ड्स से सेंटेंसेस पे आ गए हैं, हमने जुमला बनाना शुरू कर दिया है। ये एक मुकम्मल जुमला है और इसमें दो अल्फाज हैं, हाजा और बैतुन। हाजा क्या है? ये इस्मुल इशारा है, इसे इस्मुल इशारा कहा जाता है। वो इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस्मुल इशारा। ये बात याद रखिए कि हाजा के बाद जब भी हम इस तरह का जुमला बनाएंगे तो हाजा के बाद जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसके आखिर पे हम हमेशा तनवीन लगाएंगे। उसके आखिर पे हमेशा तनवीन लगाएंगे, यानी उस हाजा के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो नकिरा इस्तेमाल होगा। ठीक है। हाजा के बाद आने वाला लफ्ज़ हमेशा नकिरा इस्तेमाल होगा। और तनवीन तो लगाएंगे, लेकिन तनवीन में दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश तीनों चीज़ें होती है ना। तो इस पे हम एक तो तनवीन लगाएंगे और मरफू वाली तनवीन, मरफू इस्तेमाल करेंगे इसको, यानी पेश ही लगाएंगे। ये नहीं हो सकता हादा बैतन या हादा बैतिन, ये नहीं हो सकता। ठीक है। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। एक ये कि ये मारिफा नहीं होगा, अल बैतु हादा अल बैतु नहीं होगा। और दूसरा ये कि ये मंसूब या मजरूर नहीं होगा, ये बैतन या बैतिन नहीं होगा, बैतुन ही होगा, हाजा बैतुन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ और मिसालें देखिए इसकी। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। ये वो अस्मा हैं, ये वो अल्फाज हैं जो हमें उर्दू में हम इनको पहले से जानते हैं। हमें इनके मतलब जो है वो मालूम है। हादा किताबुन, ये किताब है। हादा कलमुन, ये कलम है, ये पेंसिल है। हादा मिफ्ताहुन, ये शायद आपके लिए नया लफ्ज़ होगा, इसका मतलब होता है चाबी। हादा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन चाबी। हादा मकतबुन, ये मेज़ है, ये टेबल है। हादा सरीरुन, ये बेड है। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। सरीर भी शायद आपके लिए नया लफ्ज़ हो। सरीरुन, मकतबुन, मिफ्ताहुन, ये तीन नए अल्फाज हैं। सरीर, बेड, कलम और मकतब, ये अल्फाज हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये एक चीज़ है, इसकी तरह हमें अगर ये पूछना हो कि ये क्या है तो हम अरबी में कैसे पूछेंगे? क्या, क्या के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? क्या के लिए अरबी में हम माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। माँ, माँ का क्या मतलब होता है? क्या, व्हाट। तो हम कैसे सवाल करेंगे? माँ हादा, माँ हादा, माँ हादा, ये क्या है? माँ हादा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ठीक है। हादा नजमुन, ये सितारा है। माँ हादा, ये क्या है?
हाजा नजमुन। आपने बहुत लेट याद कराई है। हाजा नजमुन, ये सितारा है। और माँ जो है इसे क्या कहा जाता है? इस्मुल इस्तिफहाम कहा जाता है। माँ को इस्मुल इस्तिफहाम कहा जाता है। इसके बारे में सवाल करें जी। कैसे सवाल करेंगे? मा हाजा, ठीक है, ये क्या है? हाजा कमीसुन। हाजा कमीसुन, ये कमीज है। ये अरबी में इसको कमीसुन बोलते हैं। और उर्दू में कमीज ज़ाद के साथ। ये शर्ट है या कमीज है, एक ही बात है। मा हाजा, हाजा कलमुन, ये कलम है। ठीक है। मा हाजा, हाजा, इसके ये क्या है जी? हाजा जिदारुन। आपको ये बातें समझ आ रही हैं? किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ये दीवार है, जिदार दीवार को कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया था कि किसी के चीज के बारे में सवाल पूछना, कि कोई चीज हमें पता नहीं है तो हम पूछना ये क्या है। लेकिन अगर हम किसी एक जुमले को सवालिया बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में होता है ना, दिस इज अ पेन। ठीक है, दिस इज अ पेन। तो अगर हम उसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं? इज को पहले ले जाते हैं। इज दिस अ पेन, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। ऐसा ही है ना? तो ये अरबी में कैसे होगा? हाजा कलमुन एक जुमला है, हमें इसको सवालिया जुमला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सवालिया जुमला हम ऐसे बनाएंगे कि इसके शुरू में हम हमजा जबर आ लगा देंगे। ठीक है, हमजा लगा देंगे। इसके शुरू में हमजा लगा देंगे तो ये बन जाएगा अहाजा कलमुन। ये अब सवाल बन गया है। इसका मतलब क्या है? क्या ये कलम है? ठीक है, क्या ये कलम है? इज दिस अ पेन? हाजा किताबुन, ये किताब है। इसको कैसे सवालिया बनाएंगे? इसके शुरू में आ लगाएं। ठीक है, अहाजा किताबुन, क्या ये किताब है? आगे देखें, हादा शरीरुन को कैसे बनाएंगे? अहादा शरीरुन, क्या ये शरीर है, क्या ये बेड है? हादा नजमुन, इसको कैसे बनाएंगे? अहादा नजमुन, क्या ये सितारा है? ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि ये कैसे बना सवालिया जुमला? क्यों जी, किसी को समझ ना आया हो तो बताएं, और किसी को समझ आ गया हो तो भी बता दें। सबको समझ आ गया है? अभी तक जितनी भी बातें की हैं सबको समझ आ गई हैं? जी, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस अभी क्लास ख़त्म करनी है 5-10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है जी, सबका जवाब आ गया है। सही है। इसके बारे में सवाल करते हैं जी। अहाजा कलमुन, अब इसका जवाब कैसे देंगे? अब इसका जवाब हम कैसे देंगे? इसका जवाब उर्दू में अगर हम कोई कोई बात करें, ये सवाल करें कि क्या ये पेंसिल है,
تو दो तरीकों से जवाब दिया जा सकता है ना। या हम कहेंगे हाँ ये पेंसिल है, या हम कहेंगे कि नहीं ये पेंसिल नहीं है, या कुछ कोई और चीज़ है। तो या हम हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ऐसा ही है ना। तो जब हाँ बोलना हो तो हम कहेंगे नाम। हाँ बोलना हो तो हम कहेंगे नाम हाजा कलमुन। हाँ ये कलम है। ठीक है, नाम हाजा कलमुन। ये सवाल है जी, क्या ये गधा है? अहाजा हिमारुन। अहाजा हिमारुन। ला, नहीं। हाजा हिसानुन। हाजा हिसानुन, नहीं ये घोड़ा है। ठीक है। आगे चलते हैं। नाम और ला, ये दो अल्फाज और हमने सीखे हैं। ये क्या हैं? इनको हरूफुल जवाब कहा जाता है। ठीक है, हरूफुल जवाब कहा जाता है इनको। ये जवाब के हरूफ हैं। ये हमारा आज की क्लास थी इतनी ही। ये चीज़ें हमने आज सीखनी थी। आइए इनकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अ, किताब से, जो हमने किताब पढ़नी है, हम हमारी जो सिलेबस की किताब है उससे हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसको कैसे, किताब में इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। ये किताब का आपके सामने आपको शो हो रही है ना किताब? किताब आपको शो हो रही है स्लाइड में? अच्छा, तो ये दरसुल अव्वल है, दरसुल अव्वल, लेसन वन। हाजा, हाजा बैतुन। आप में से कोई इसको पढ़ना चाहता है तो बेशक पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ना चाहता है जी? या मैं खुद ही पढ़ देता हूँ इसको, अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता। जी फातिमा शहजाद, आप पढ़ सकती हैं। सर मैं पढ़ लूं? जी जी पढ़ें। हाजा बैतुन, ठीक है। हाजा मस्जिदुन, ठीक है, बाबुन। इसका तर्जुमा भी साथ साथ करते जाए ना। हा- हाजा बैतुन ये घर है। ठीक है। मस्जिदुन ये मस्जिद है। बाबुन ये दरवाजा है। हाजा किताबुन ये किताब है। हामुन ये कलम है। इफ्ताहुन ये चाबी है। हाजा मकतबुन ये मेज है। हाजा सरीरुन चारपाई या बेड है। हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है। कोई और पढ़ना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जी मा हाजा। ठीक है, मा हाजा पढ़ें इसको। फातिमा शहजाद आप पढ़ें जी। फातिमा शहजाद पढ़ें। महाजा ठीक है, क्या मतलब होगा इसका? ये क्या है? ठीक है, आगे हाजा पढ़ते जाएं। बेबी मा महाजा हाजा बैत ये घर है। अहाजा ये घर है। नाम हाजा बैतुन हाँ ये घर है। ठीक है, आगे पढ़ें। महाजा ये क्या है? हाजा ठीक है। कमीज ये ठीक कमीज है। है। अहाजा शरीर अहाजा शरीरुन जी। क्या है? ये ला ला हाजा कुर्सी जो नहीं ये कुर्सी है।
आगे पढ़ें जी। आगे कोई और पढ़ना अहाजा चाहे तो बता दें, नहीं तो आप इसको जारी अहाजा रखें। मिफ्ताहुन मिफ्ताहुन, अहाजा मिफ्ताहुन, ठीक क्या है। ये चाबी है? ला हाजा नहीं, ये कॉलम है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा नजमुन, ये सितारा है। अच्छा जी, अब ये है एक्सरसाइज। इसका, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जवाब आपने खुद लिखना है, आपने खुद बोलना है, ठीक है। बताएं ये मा हाजा, तस्वीर को देख के आपने बताना है मा हाजा। कोई बता सकता है? हाजा मकतब। हाजा ठीक है, दूसरी तस्वीर मा हाजा। हाजा सरीरुन। बिल्कुल ठीक। मा हाजा। हाजा किताबुन। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, मा हाजा। हाजा बाबुन। सही, और नेक्स्ट? हाजा बैतुन। ठीक हो गया। ये देखें आप, कितना इजी है। अब आपको सारा, आप अरबी बल्कि बोलना भी शुरू हो गई हैं। कोई और बताएं जी, फातिमा शहजाद आप ही बता दें। ये आप बताएं, अहाजा बैतुन, इसका जवाब दें। अहाजा बैतुन, तस्वीर को देख के जवाब देना है। नाम हाजा बैतुन। अच्छा, आंटी भी हमारे साथ हैं। आंटी तबस्सुम, आप बताएं, बेशक चैट में ही बता दें, अगर वॉइस में नहीं तो अहाजा कमीसुन। हम आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। आप चैट में बेशक लिख के जवाब दे दें इसका, अहाजा कमीसुन। बेशक वॉइस में जवाब दें, बेशक चैट में जवाब दें, लेकिन आपने इसका जवाब देना है। तब तक नाम कमीसुन नहीं, नाम हाजा कमीसुन, ठीक है। हाजा भी आपने बोलना है साथ। अच्छा, अभी अगला सवाल, ये जो अगला जवाब है ना, ये हमें जवाब देंगी सिस्टर कुरतुलैन। अहाजा मिफ्ताहुन। क्या ये चाबी है? चाबी है। नाम अहाजा हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? इसका जवाब क्या होगा? हाजा मिफ्ताह, क्या ये चाबी है? नाम हाजा कलमुन। नाम नहीं होगा, ला होगा ना। ला नहीं, ये हाजा कलमुन, ला नहीं, ना, ये कलम है, ना ठीक है जी। कलम। अहाजा नजमुन, इसका भी आप ही बता दें। हाजा नजमुन, क्या ये सितारा है? क्या ये सितारा है? जी, नाम जवाब हाजा नज, हाँ बिल्कुल ये ठीक, सितारा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बस ये आज का हमारा लेसन यहीं तक था, ठीक है। ये इस वीक की आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, और जो कल असाइनमेंट दी थी और जो इस वीक में दी थी, जो बहुत से लोगों ने भेजी भी है, मैं उसका जवाब नहीं दे सका, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और जो अभी मैं एक असाइनमेंट इस वीक के लिए मैं आपको दूंगा, वो आपने सॉल्व करनी होगी और इस वीक में मुझे भेजनी होगी। और अब कोशिश करना है कि मुझे ग्रुप में नहीं भेजनी, बल्कि सब मुझे इंडिविजुअली भेजेंगे, इनफरादी तौर पे मुझे सेंड करेंगे, ताकि मैं उनको इनफरादी तौर पे ही जवाब दे सकूं। ग्रुप में फिर बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, असाइनमेंट्स आती हैं और उनको हर एक को मैं अलग अलग जवाब दे रहा होता हूँ, तो किसी को शायद समझ ना लगे कि किसका जवाब मैंने किसको दिया है। तो ये आपने असाइनमेंट करनी है। तो आज का लेसन आपको कैसा लगा है? मुश्किल तो नहीं लगा?
یا اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے آپ نے تو کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، پھر اگلے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.